Hello guys, once again today's topic problem based on simple air refrigeration system. ओके जो पिछली बार जो है गाइस हम लोगों ने important problem देखा था simple air refrigeration system. Now today's lecture we will discuss the problem based on bootstrap air refrigeration system. ओके 14 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम में आने वाला है. How to solve such an important problem? First, what will you do? First of all, read the problem carefully. Then we will solve. Okay. So see, a bootstrap cooling system of 10 tons capacity it is used in aeroplane. The ambient air temperature and pressure at 20 degrees Celsius and 0.85 bar respectively. The pressure of air increases from 0.85 bar to 1 bar. Okay? Due to ramming actions of the air, the pressure of air discharged from the main compressor is 3 bar. Okay? The discharge pressure of the air from the auxiliary compressor, the pressure is 4 bar. Okay? देखिए next, the asymptotic efficiency of each of the compressor is 80%, while that of turbine efficiency 85%, and 50% of the enthalpy of air discharge from the main compressor is removed in the first primary heat exchanger, and 30% enthalpy of air that is discharged from the auxiliary compressor is removed in the secondary heat exchangers using ramming air. Assuming the ramming to the isentropic, the required cabin pressure of 0.9 bar and temperature of the air leaving the cabin is not more than 20 degrees Celsius. So find out what you want to find out power required to operate the given system. COP. Take the value of gamma 1.4 and Cp का value कितना है 1 किलोजूल पर kg Kelvin. Okay. So before that, write down the given things or given data. What is given in the problems. Okay. So उसके पहले हम लोग एक TS diagram जो है हम लोगों ने previous lecture में देखा वो पहले बना लेते. Temperature entropy diagram for bootstrap air refrigeration system. 1 से 2 ideal condition में, ramming air actual condition में 1 से 2 dash, 2 dash to 3, 2 dash to 3 dash, then ये primary heat exchanger हो गया. उसके बाद क्या है secondary compressor 4 to 5, actual condition में 4 to 5 dash. Okay. उसके बाद क्या है 5 to 6 जो है टेम्परेचर ड्रॉप होता है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के अंदर. उसके बाद आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर आता है इन कूलिंग टरबाइन के अंदर 6 to 7, एक्चुअल कंडीशन में 7 डैश, एंड लास्ट है आपका कैबिन वाला टेम्परेचर प्रोसेस 7 डैश to 1. ओके. तो देखिए फिर गाइस आपको 10 टन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ Q आपको दिया है 10 टन्स. देन टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको गिवन है एम्बिएंट एयर का या सराउंडिंग एयर का, ये वाला जो आपका ये प्रेशर होगा P1 और टेम्परेचर क्या है T1 टेम्परेचर. तो सराउंडिंग एयर का है T1 is equals to 20 डिग्री सेल्सियस. अब इसको प्लस 273 किए तो आपको क्या मिल जाएगा 293 केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा. P1 प्रेशर गाइस 0.85 बार. नेक्स्ट क्या है pressure of the air increases from 0.85 bar to 1 bar due to the ramming action. प्रेशर आपका जो इंक्रीज हो रहा है
0.85 बार से लेके 1 बार, ये आपका डैमिंग प्रेशर। So P2 is equals to 1 bar. Okay. Next guys, क्या दिया है? The pressure of the air discharged from the main compressor सिलेंडर के अंदर ये कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है। तो आपका प्रेशर इंक्रीज होके मेन कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर जो आ रहा है P3 is equals to P3 dash is equals to P4, that is what guys 3 bar to say here. The discharge pressure of the air from the auxiliary या सेकेंडरी कंप्रेसर is 4 bar. अब 3 बार से प्रेशर आपका इंक्रीज होगा सेकेंडरी कंप्रेसर के अंदर, तो वहां पर प्रेशर आपका ये कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है P5 is equals to P5 dash P6 4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Asymptotic efficiency of each of the compressor is 80%। जो कंप्रेसर एफिशिएंसी है ये वाले कंप्रेसर की और सेकेंडरी कंप्रेसर की एफिशिएंसी आपको दिया है 80% एंड टरबाइन एफिशिएंसी 85%। ओके, देखिए एंड एंथैल्पी ऑफ एयर 50% एंथैल्पी ऑफ एयर डिस्चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी हीट एक्सचेंजर्स। ओके, तो यहाँ पे जो आपका हीट निकल के लैटेंट हीट एक्सचेंजर से निकल के आपका जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वो आएगा आपका T4 टेम्परेचर। मतलब कितना हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है? एंथैल्पी ऑफ एयर मतलब क्या? हीट एनर्जी। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम द प्राइमरी हीट एक्सचेंजर्स। ओके, तो वो है उसका आंसर। तो T4 is equals to 50%, 0.5 टाइम्स T3 डैश ये टेम्परेचर, ठीक है। देखिए ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या? 30% एंथैल्पी ऑफ एयर डिस्चार्ज फ्रॉम द सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर्स। कितना हीट एनर्जी रिलीज हो रही है? 30%, मतलब 100% एफिशिएंसी है मान लो, तो कितना लॉस हो रहा है? 30%, तो कितना बचेगा? 0.7, 70%। तो T6 is equals to 0.7 टाइम्स T5 डैश, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए चलिए आगे बढ़िए। और ये 0.9 बार आपको कैबिन का प्रेशर ये जो दिया है, तो ये आएगा P7 is equals to P7 डैश is equal to P8। ये प्रेशर जो है 0.9 बार एंड कैबिन का टेम्परेचर जो है आपको T8 लास्ट टेम्परेचर आपको गिवन है, दैट इज व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस 293 केल्विन। और we have to find power, COP and value of MA। How to solve such a given problem? To see here, तो हमें अभी इसके पहले जो फाइंड आउट करना है उसके फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेंगे। MA क्या होता है? 210 Q अपॉन Cp in bracket T8 minus T7 dash। ये टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या है? कंप्रेसर वर्क डन MHCP in bracket T3 dash minus T2 dash डिवाइडेड बाय 68 किलोवाट में पावर। तो आपका फॉर्मूला क्या है? 210 Q अपॉन Q अपॉन क्या होता है? कंप्रेसर वर्क डन। तो वर्क डन कितना है? MHCP ब्रैकेट T3 डैश माइनस T2 डैश, ठीक है। तो चलिए फिर इतना डिमांड हम लोगों ने लिख ली है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 1 से 2 गाइस आइसेंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस, उसके लिए एक लॉ है आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है 1 से 2, तो T2 अपॉन T1 is equals to P2 अपॉन P1 रेज़ टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। प्रेशर हम लोगों को मालूम है, so put the value here, you will get the value of T2।
ओके चलिए तो गाइस यहाँ पे T2 निकालना है T1 293 is equals to P2 pressure how much 1 bar and P1 how much it is given 0.85 और value of gamma 1.4 minus 1 upon 1.4. So if you solve in Calci you will get the value of T2 in Kelvin जो आता है 306.8 Kelvin. चलिएगा नेक्स्ट 2 to 3 ये प्रोसेस क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है बेड कंप्रेसर सिलेंडर के अंदर तो उसका अगेन लॉ हम लोग यूज करेंगे टेंपरेचर इनटू प्रेशर रेशियो so T3 upon T2 is equals to P3 upon P2 gamma minus 1 upon gamma. T3 you have to find out the value of T2 is what 306.8. How much the value of P3? 3 bar and P2 1. 3 divided by 1. So guys, if you solve in Calci, you will get the value of T3 420.3 Kelvin. अब देखिए कंप्रेसर इफिशिएंसी दिया है उसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है T3 minus T2 upon T3 dash minus T2 ये क्या है आइसेंट्रोपिक rise or change in temperature divided by actual rise or change in temperature. This ratio is nothing but the isentropic compressor efficiency. Okay, so from that you will get the value of T3 dash. तो efficiency कितना दिया 80%. चलिए put the value of 0.8 T3 temperature for 20.3 minus how much the value of T2 T2 कितना है अभी 306 आपको मैंने फाइंड की 306.8 T3 डैश निकाला है चलिए गाइस so you will get the value of T3 dash ये आएगा 448.7 ये केल्विन T3 dash into 0.5 you will get value of T4 okay अब ये टेम्परेचर को आप -273 लगा आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाएगा जो आता है 175.5 डिग्री सेल्सियस 0.7 So T4 is equals to 0.5 into 175.7. T4 temperature guys you will get 87.85 degree Celsius. और केल्विन में अगर इसको करेंगे ओके प्लस 273 ऐड करके तो आपको 360.85 360.8 ये केल्विन में मिल जाएगा अब बचा T5 टेम्परेचर T5 डैश टेम्परेचर T6 आपको यहां से मिल जाएगा देन T7 टेम्परेचर T7 डैश टेम्परेचर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो अभी मैं इसको थोड़ा रब करता हूं तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एग्जाम में आने वाला 14 नंबर के लिए पूछते हैं 100%. So you have to be concentrate how to solve
टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है. You have to clear your all the queries, doubts. Okay. So we will move, guys. T5 टेम्परेचर हम लोग कहाँ तक आए हैं? T4 ये टेम्परेचर तक आए. ठीक है. चलिए. यहाँ तक आए तो 4 to 5 आपका क्या हो रहा है? Azeotropic. There is a compression of air in secondary compressor. Okay. Secondary compressor cylinder. तो अब यहाँ पे प्रोसेस अपनी क्या रहेगी? Azeotropic again compression process. Azeotropic compression process takes place in secondary compressor. जो है आपका 4 to 5. तो लगा दो प्लस टेम्परेचर इनटू प्रेशर रेशियो T5 अपॉन ओके T5 अपॉन T4 is equals to P5 अपॉन P4 रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा. सो गाइस आपको प्रेशर तो दिया है P4 P5 और P4. ओके देखिए 4 divided by 3 4 divided by 3 1.4 minus 1 upon 1.4. ठीक है. चलिए और ये आपको T5 फाइंड करना है. T4 तो अभी जस्ट निकाला है लोगों ने 360.8. सो T5 ये आपको मिलेगा 391.5 एक केल्विन. अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लेना है तो 118.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़िए. T5 डैश टेम्परेचर गैस आपको फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ पे आगे हमको सेकेंडरी कंप्रेसर एफिशिएंसी दिया है. वो कैसे लेंगे? दिस T5 temperature minus T4 temperature, higher temperature minus lower temperature divided by higher temperature minus lower temperature. So isentropic change in temperature divided by actual rise in temperature. So T5 minus T4 divided by T5 dash minus T4 temperature. ये efficiency 0.8 is given in the problem. T5 हम लोग कर देंगे 391.5 minus T4 360.8 divided by 3.5 dash find out करना है. T4 360.8 ले लिए. T5 dash if you solve in calculus so definitely you will get the value of T5 dash. So that is what 99.16 in Kelvin. इसको अगर डिग्री सेल्सियस में निकाले तो ये आ जाएगा 126.16 डिग्री सेल्सियस. Are you getting? Yes or no? चलिए आगे आप देखिए. जितना बड़ा प्रॉब्लम है डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम. ओके तो उतना उसका वेटेज भी है. ठीक है. 14 नंबर है इसलिए वो टाइम लेता है. बड़ा प्रॉब्लम है ये आपको समझना है. ठीक है. चलिए सो गाइस हम लोग यहां तक आ गए हैं. अब 5-6 से प्रोसेस क्या हो रहा है? हीट एक्सचेंजर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के अंदर आपका हीट निकल के टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. T5 डैश यहां पे रख देंगे तो आपको T6 टेम्परेचर मिल जाएगा. सो T6 is equal to 0.7 टाइम डिग्री सेल्सियस में ले लो 126.16. सो T6 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 88.3 डिग्री सेल्सियस. अगर एक केल्विन में निकालेंगे तो गाइस आपको मिलेगा 361.3. ओके यस करेक्ट. अब देखिए 6 to 7 ये प्रोसेस क्या हो रहा है? दैट इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर इन कूलिंग टरबाइन के अंदर. तो यहाँ पर अगेन जो लॉ लगेगा 6
P7 upon P6 to gamma minus 1 upon gamma। ठीक है, चलिए P7 आपको जो प्रेशर है 0.9 डिवाइडेड बाय P6 जो प्रेशर आपको दिया है कितना आएगा 4, 0.9 डिवाइडेड बाय 4, 0.9 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, T7 निकाला है, T6 ये हम लोग ले लेंगे 361.3। तो गाइस ये आपको मिलेगा T7 टेम्परेचर 236 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अगर लिए -273 अगर करके तो -37 डिग्री सेल्सियस कितना मिला। अब देखिए टरबाइन एफिशिएंसी भी आपको दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है 85%। तो लगा के हम लोग T7 डैश टेम्परेचर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए we know that the turbine efficiency कहां से का प्रोसेस में आएगी, ये वाले प्रोसेस में आएगी। तो T6 माइनस T7 माइनस T7 डैश डिवाइडेड बाय T6 माइनस T7। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्चुअल चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक चेंज इन टेम्परेचर। सो T6 टेम्परेचर रख दो, फिर ये एफिशिएंसी है कितना है ये 0.85, T6 361.3 माइनस T7 डैश फाइंड आउट करना है। T6 टेम्परेचर 361.3, T7 कितना 236, T7 डैश ये आपको मिलेगा 254.8 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में -18.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो चलिए गाइस इतना करने के लिए हम लोग T7 डैश टेम्परेचर आके फाइंड आउट कर लिए। So put that value of T7 dash in this formula, you will get the how much amount of air that is required for that given refrigeration system। वो हमारा required आंसर है जो हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्टली हम लोग मास फ्लो रेट ऑफ एयर केजी पर मिनट के अंदर निकालेंगे। क्यू हम लोगों को 10 टर्म्स में दिया है। सीपी हम लोग लेंगे, कितना वैल्यू दिया है सीपी 1 दिया। T8 कितना था टेम्परेचर 293, T7 डैश 254.8, तो ये आपको आ जाएगा 55 kg पर मिनट के अंदर। ओके, सो पावर रिक्वायर्ड MACP in bracket T3 dash minus T2 upon 60। सो चलिए गाइस MA फाइंड आउट किए 55 CP 1 लेंगे। T3 डैश टेम्परेचर जो है कितना निकाला था हम लोगों ने 448.7 माइनस T2 डैश 306.8 डिवाइडेड बाय 60। तो ये पावर किलोवाट में आपको अपने मिलता है 130 किलोवाट। लास्ट आपका बचा है कॉप 210 into Q 10 लेंगे, CP1 A में कितना था 55 into 1 और T3 डैश 448.7 माइनस T2 डैश कितना है 306.8
5.27. Okay. So I hope that guys you should clear such important problems. Okay. If you have any queries, any feedback, any suggestions, any doubts, we will resolve and solve in Q&A sessions. Okay. I hope that you should be understood. Okay. Keep watching. We will meet next session. Till then, goodbye. Thank you.